Hello students, good evening one and all. Today lecture number 14, chapter number 4, laws of motion. Yesterday we derived the equation of final velocities for elastic collision. Elastic collision is that collision in which the total linear momentum always conserved as well as total kinetic energy before and after collision is conserved. That we derived. Okay. So to remember this equation, very simple, right? So if you remember equation 1, you can remember equation 2 without any hesitation. See, V1 is equal to subtract difference of first mass minus second mass into the velocity, initial velocity of first particle U1, because it is V1, final velocity of first particle. So here there will be initial velocity U1 plus 2 times mass of second particle upon total mass into the initial velocity of second particle. तो हियर m2 है, यहाँ पे u2 है, राइट, यहाँ पे m1 है, यहाँ पे u1 है, इसे याद रखना है. सिमिलरली हाउ कैन वी राइट फॉर v2? v2 इज इक्वल टू m1 के जगह पे m2 माइनस m1, यहाँ पे u1 है, यहाँ पे u2 रहेगा, प्लस टोटल मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल 2m2 अपॉन डबल द मास ऑफ पार्टिकल 1 अपॉन टोटल मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. सो दिस फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमको लगने वाले हैं इन द नेक्स्ट डेरिवेशन. ओके, तो बिफोर दैट यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, दैट इज इफ टू पार्टिकल्स अंडरगो वन डायमेंशनल हेड ऑन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. ओके, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन यस्टरडे हमने देखा कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है दैट इज 0, एंड इन दैट केस what happen, when the two bodies collide together, they stick together, and after collision they are moving with the common velocity. That is the condition for the perfectly inelastic collision. Okay, so by principle of conservation of linear momentum, how can we write the total linear momentum before collision, mass momentum of first particle plus momentum of second particle, which is equal to, right, after collision they stick together, so they will have the common mass, right? So common mass means total mass m1 plus m2, they will have total mass will be there, and both the stick body will move together with the common velocity, and that is denoted by v. Okay, so here we can write the common velocity v is equal to m1 u1 plus m2 u2 upon the total mass m1 plus m2. This is the expression for common velocity when there is a perfectly inelastic collision. Got it everyone? So v is the common velocity. So here we can write v is equal to common velocity. Common velocity. V is the common velocity. Similarly, now the next possible question which is given in the text, obtain the value for the coefficient of restitution for perfectly inelastic collision. The perfectly inelastic collision का restriction value is E is equal to 0. Okay, but what is the formula for this? The formula for this, the coefficient of restitution, E is equal to velocity of separation divided by velocity of approach. Velocity of approach, and it is 0. So how can we write the expression for velocity of separation? That will be v2 minus v1, but it is 0 actually, right? There is no separation, so 0 upon velocity of approach u1 minus u2, and that's why it is 0. There is no velocity of separation at all because both the bodies moving with the कॉमन वेलोसिटी. तो सेपरेशन का कोई सवाल ही नहीं होता यहाँ पे, तो यहाँ पे सेपरेशन क्या आएगा, 0 आएगा. सो सिंपल, एक मार्क के लिए दिस कैन आस्क फॉर 1 मार्क, दिस कैन आस्क फॉर 1 मार्क. ओके स्टूडेंट, चलो अभी लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट डेरिवेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट्स लुक एट द डेरिवेशन फर्स्ट. उसके पहले मैं ज़रा ये कर दूँ. Okay, this is the textbook solved question. One marble collides head on collision. Head on मतलब one dimension motion. Another identical marble at rest, right?
एंड इफ द कोलिजन इज पार्शियली इनइलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक मतलब क्या होगा, देयर विल बी ई इज लेस देन 1. ओके, तो यहाँ पे इसका डायग्राम थोड़ा इमेजिन करेंगे. सी इट विल बी लाइक दिस. दिस इज m1, another body m2. This is moving with the velocity u1 bar, this is moving with the velocity u2, and during the collision, for the moment they will stick together. Okay, and they will exert the force. The mass is m1, mass is m2, right? And after collision they will move like this. So this is v1 bar and v2 bar, and this is m1, this is m2. Okay, so here what happened, it is the partially inelastic. Okay, just 1 minute. Partially inelastic collision. So by using the law of conservation of momentum, by using law of conservation of linear momentum, ये इक्वेशन हमको बार बार लगने वाला है, तो आपको अभी याद ही रखना पड़ेगा इसको. वी रिक्वायर दिस इक्वेशन फ्रिक्वेंटली. सो हाउ कैन वी अप्लाई द लॉ ऑफ linear momentum? That is the total initial momentum before collision is equal to total linear momentum, final momentum after collision. Okay, so what is the initial momentum of the body 1? That will be m1 u1 plus what is the initial momentum of body 2? That will be m2 u2, which is equal to what is the total momentum after collision? That will be m1 v1 plus m2 v2. ओके, और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि बोथ द मार्बल आर आइडेंटिकल, मतलब देयर मासेस आर इक्वल. ओके, बट द कंडीशन हियर इज बट m1 is equal to m2 which is equal to small m, and the second particle, second marble which is at rest. Okay, but u2 is equal to 0 because at rest. Then by using this condition in this equation, इसको equation number 1 देंगे हम for our reference. Okay, so just put this. So here we can write mu1 plus mu2 is 0 into 0, which is equal to m1 v1 plus m2 v2. Okay, यहाँ पे m2 नहीं रहेगा. ओके, सो दे विल हैव द कॉमन मास निकल जाएगा यहाँ पे. दिस मास टर्म विल गेट कैंसल, सो वी विल गेट u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2. इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 देंगे, राइट. सो u इज इक्वल टू v1 प्लस v2. देन कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ restitution E is equal to, there is a difference in velocity, right. So difference in velocity मतलब final velocity minus initial final velocity of particle 1 upon u1 minus u2. okay, but यहाँ पे u2 क्या है, u2 the body is at rest. okay, but u2 is equal to 0. so E is equal to क्या आएगा, v2 minus v1 upon u1. okay, so this can be written as v2 minus v1 is equal to E times u1. तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे. विल गिव दिस इक्वेशन नंबर 3. ओके, सो E इंटू u1. नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 3, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 3, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 3, क्या लिख सकते हैं हम लोग? We can write E times u1 upon u1 which is equal to v2 2 by 1 ना, v1 plus i2 उल्टा हो गया, सॉरी. so it is u1 upon E times u1 which is equal to v1 plus v2 upon v2 minus v1. u1 कट हो जाएगा. so this will be v1 plus v2 is equal to E times
v2 minus v1. Okay, so from this we can write E time v2 minus v1. Then further यहाँ पे और this can be written as v1 plus v2 upon v2 minus v1 which is equal to 1 upon e. यहाँ पे क्या करना है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो फॉर्मूला यूज करना है बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. इस वाई वी आर डूइंग लाइक दिस, यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखो लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली हियर. If the collision is partially inelastic, determine the ratio of their final velocities. Okay, मतलब v1 अपॉन v2 निकालना है यहाँ पे, हमको क्या लेना है यहाँ पे, v1 अपॉन v2, राइट, इन टर्म्स ऑफ देयर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. मतलब v1 अपॉन v2 इन टर्म्स ऑफ e के फॉर्म में लाना है. लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन है और यहाँ पे 1 अपॉन e है, वो नहीं चाहिए. तो बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या फॉर्मूला है वो, दैट इज a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d. This can be written as a plus b or a minus b, which is equal to c plus d or c minus d. This formula can be used, componendo dividendo. So by using this concept here, we can write, so v1 plus v2, right, plus v2 minus v1, ये इसमें ऐड होगा, डिवाइड बाय, नीचे सब्ट्रैक्ट होगा, v2 minus v1 minus of b सॉरी ये लेना पड़ेगा यहाँ पे. सो v1 प्लस v2 माइनस v2 माइनस v1, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 1, एक बार 1 प्लस डिनोमीटर 1 प्लस e अपॉन 1 प्लस डिनोमीटर सॉरी 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई. एक बार डिनोमीटर ऐड करना है, एक बार डिनोमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट. अभी देखो यहाँ पे क्या कट होगा, v1 पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाएगा. इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम प्लस. ओके बच्चों, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्या होगा, यहाँ पे v2 निकल जाएगा, तो 2v1 बचेगा, यहाँ पे 2v2. सो 2v2 अपॉन 2v1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई. बट हमको चाहिए v1 अपॉन v2 चाहिए. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको उल्टा करेंगे, विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. तो क्या आएगा रेसिप्रोकल लिया तो v1 अपॉन v2 विच इज इक्वल टू, अभी ये ऊपर जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दिस आंसर. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay, now the next question. आई होप सबको समझ में आया होगा. यहाँ पे कुछ नहीं, ये इक्वेशन बार बार हमको लिखना है, राइट. अगला जो है क्वेश्चन, 2 पार्टिकल्स अंडरगो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. ओके, सो अंडरगो हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व बट द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, राइट. फाइंड देयर फाइनल वेलोसिटीज इन टर्म्स ऑफ देयर मासेस, इनिशियल वेलोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. मतलब जो v1 और v2 है, वी आर टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर v1 एंड दिस इज फॉर इलास्टिक कोलिजन. तो ऐसे ही फॉर्म में लाना है, लेकिन इसमें क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी आना चाहिए, ई भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, v इज इक्वल टू 1 है. ये जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है फॉर इलास्टिक कोलिजन, इन द इलास्टिक कोलिजन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू 1, तो वो 1 की वजह से यहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहा है. लेकिन इफ़ यू आर टेकिंग द केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, तो वहाँ पे ये जो इनिशियल वेलोसिटी तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला जो टर्म है ई वाला, वो भी आना चाहिए इसमें. देयर विल बी ई टर्म ऑल्सो इन्वॉल्व एंड द सेम वे वी आर टू फॉलो, जैसे हाउ वी डिराइव फॉर द इलास्टिक कोलिजन.
फाइन. सो लेट्स फाइंड द एक्सप्रेशन इन दिस वे. सिर्फ यहाँ पे ई रहेगा फॉर इन इलास्टिक कोलिजन. ओके, सो एक्सप्रेशन फॉर expression, give the title, expression for final velocities in terms of their masses and initial velocities, also in terms of coefficient of restitution. हमने देखा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है. इट इज द नेगेटिव रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अपॉन फाइनल वेलोसिटी टू द रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी v2 minus v1 upon u1 minus u2, right? Relative velocity of separation to the relative velocity of approach, that is the coefficient of restitution. हमने कल उसको देखा है. ओके, तो यहाँ पे एज यूजुअल जो भी है, तो लेट द मासेस आर m1 and m2. सो लेट स्टार्ट विद द एक्सप्रेशन. लेट द masses of two colliding bodies or particles, two colliding bodies are m1 and m2 moving with initial velocities u1 and u2 before collision and moving with final velocities v1 and v2 after collision. Okay, and the coefficient of restitution is E. Okay, so by using the law of conservation of momentum, same by using law of conservation of linear momentum, जो पहले डायग्राम ड्रॉ किया था वही यहाँ पे भी इमेजिन करना है. पहला वाला डायग्राम इमेजिन करो आप, यू विल अंडरस्टूड प्रॉपरली. काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, सो वी नीड अ मोर स्पेस फॉर दिस. So how can we apply the conservation of linear momentum here? Very simple, same formula. Momentum of particle 1 plus momentum of initial momentum of particle 2 or body 2 u2, which is equal to the m1 v1 plus m2 v2. Okay, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे हम लोग. देन coefficient of restitution for inelastic collision, कंडीशन फॉर इनइलास्टिक कोलिजन. देखो यहाँ पे बच्चों, जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखोगे तो ये जो वर्ड है इसका जो आईएन है वो अलग मत लिखो, उसको कंबाइंड लिखो. अगर आपने यहाँ पे बीच में स्पेस छोड़ दिया तो दैट विल बी कंसिडर एज इलास्टिक कोलिजन, राइट. सो फॉर इनइलास्टिक, प्रोनाउंस करते समय बोलते समय क्या बोलने का, इनइलास्टिक. ओके, फॉर इनइलास्टिक कोलिजन व्हाट इज द कंडीशन? 0 less than or equal to less than 1. ओके, लेकिन यहाँ पे E क्या है? बट E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. ओके, दिस इज व्हाट द कंडीशन विच इज लेस देन 1. अभी इसको क्या लिखेंगे? लेट अस मल्टीप्लाई टू दिस. सो दिस इम्प्लाइज v2 minus v1 is equal to E times u1 minus u2. Write the expression for the v2. अब यहाँ पे v2 का एक्सप्रेशन लिखेंगे. We can simplify this. v2 is equal to, ये माइनस v1 इधर आ जाएगा तो v1 प्लस, ओके, ये सिंप्लीफाई करेंगे E टाइम्स u1 माइनस E टाइम्स u2. लेट इट इक्वेशन नंबर 2. v2 का हमने इक्वेशन बना दिया. वी मेड है v2 एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. ओके, एक बार क्या करेंगे, v2 का वैल्यू सब्जेक्ट बनाएंगे और सेकेंड टाइम
v1 का बनाएंगे और वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और कुछ नहीं इसमें। यहाँ पे स्टार्टिंग वाला स्टेप आपको याद रखना है, राइट। सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ, बाय पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमको? ओके, आई विल राइट एट द टॉप सो दैट विल बेटर। सो लेट अस राइट इक्वेशन 1। सो m1 v1 m1 u1 प्लस m2 u2 विच इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2, अभी v2 का वैल्यू डालेंगे, दैट विल बी v1 प्लस e टाइम्स u1 माइनस e टाइम्स u2। यहाँ पे आपको बहुत के कॉशियस रहना है वाइल स्पेशली द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो सिंबल है, तो प्लस माइनस सिंबल बराबर लिखने का यहाँ पे प्लस माइनस, ओके। और ये भी इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट अस सॉल्व दिस, रिमूव दिस ब्रैकेट। सो दिस कैन बी रिटन एज m1 u1 प्लस m2 u2 विच इज इक्वल टू m1 v1 प्लस यहाँ पे आएगा m2 v1 प्लस m2 u1 टाइम्स e माइनस m2 u2 टाइम्स e। ओके, हमारा मकसद क्या है? v1 निकालना है, राइट। तो v1 वाला टर्म यहाँ पे वैसे ही रखेंगे, सिर्फ ये जो टर्म्स है इसको इधर लेके जाएंगे। विल ट्रांसफर दिस टर्म ऑन द लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि हमको v1 कॉमन निकालना है। यहाँ पे v1 कॉमन निकाल के वी हैव टू फाइंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर v1। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज m1 u1 प्लस m2 u2, अभी ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस m2 u2 टाइम्स u, ओके, प्लस m2 u2 और ये v1 है, m2 u2 टाइम्स e विच इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे कॉमन निकलेगा m1 प्लस m2 टाइम्स v1। ओके, तो m1 प्लस m2 इधर आ जाएगा, अभी दिस विल कम ऑन द लेफ्ट साइड। अभी यहाँ पे u1 कॉमन निकलेंगे, यहाँ पे दिस u1 एंड दिस u1 विल कॉमन, so this can be written as m1 minus m2 times u1 प्लस यहाँ पे u2 कॉमन निकलेगा, कॉमन निकालेंगे और ये भी ये नहीं निकलेगा। सो दिस विल बी m2 प्लस m2 टाइम्स e इंटू u2 विच इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स v1। फाइन, सो इट्स राइट द एक्सप्रेशन फॉर v1। अभी v1 का एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो v1 कैन बी राइट रिटन एज v1 इज इक्वल टू, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज m1 माइनस m2 टाइम्स u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 टाइम्स m2e अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u2। यस, सेम वे वी कैन राइट इट। जो हमने यहाँ पे जो लास्ट में लिखा था वही फॉर्म में हमने लाया, सिर्फ यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेसिप्रोकेशन टर्म जो ऐड हो गई है, बस उतना ही फर्क है। अभी सिमिलरली वी हैव टू राइट फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर v2 का एक्सप्रेशन बनाना है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है, यहाँ पे जो ये जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, यहाँ पे v1 का इक्वेशन बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 v1 can be written as v1 is equal to v2 plus v2 minus e u1 minus u2। क्योंकि यहाँ पे देखो ये माइनस v1 है, माइनस v1 इधर आके प्लस हो जाएगा और ये पूरा टर्म इधर आके सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैंने वही किया है, v1 इज इक्वल टू v2 माइनस e टाइम्स u1 माइनस u2, करेक्ट। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो v1 इज इक्वल टू v2 माइनस e टाइम्स u1 माइनस माइनस प्लस e टाइम्स u2। लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, अभी 1 में डालने का उसको, एंड वी विल गेट एक्सप्रेशन फॉर v2, राइट। सो m1 u1
plus m2 u2 which is equal to m1 into bracket v2 minus e times u1 plus e times u2 plus m2 v2. फाइन, एनी डाउट? आई होप ये क्लियरली लिखा है मैंने. सो यहाँ पे जैसे का लेफ्ट हैंड साइड विल बी एज इट इज, सॉरी दिस इज 1 प्लस m2 u2 विच इज इक्वल टू m1 v2 माइनस m1 u1 टाइम्स e, ओके, प्लस m1 u2 टाइम्स e मल्टीप्लाई किया है प्लस m2 v2. फाइन. अभी यहाँ पे हमको v2 का फॉर्मूला बना है, तो ये m1 v2 और m2 v2 इसको उधर ही रखेंगे, और जो बाकी के टर्म्स है टर्म्स कंसर्न विथ स्मॉल ई रेस्ट्रिक्शन वाला, उसको सब में लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे. सो बच्चों दिस कैन बी रिटन एज m1 u1 प्लस m2 u2. फाइन. अभी ये टर्म इधर राइट हैंड साइड में निगेटिव, इधर आके प्लस हो जाएगी, प्लस m1 u1 e, ओके, ये वाला एकदम इधर आके माइनस हो जाएगा, m1 u2 e विच इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे m1 और m2 यहाँ पे कॉमन निकलेगा, m1 प्लस m2 कॉमन v2 कॉमन निकलेगा, बिकॉज आवर एम इज टू डिराइव द इक्वेशन फॉर v2 का फॉर्मूला बनाना है. तो बच्चों v2 इज इक्वल टू, राइट, ये जो m1 प्लस m2 ये दोनों को डिवाइड हो जाएगा. So this can be written as m1 u1 plus यहाँ पे कुछ कॉमन निकलेगा क्या? यस, यहाँ पे भी कुछ कॉमन निकालेंगे. m1 u1 यहाँ पे u1 कॉमन निकलेगा, so this can be written as m1 plus m1 e in terms of u1 बराबर अपॉन ये टर्म इधर डिवाइड हो जाएगी m1 प्लस m2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, u2 कॉमन निकालेंगे, वी कैन राइट m2 माइनस m1 टाइम्स e अपॉन m1 प्लस m2 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, u2. सेम इक्वेशन जो इलास्टिक कोलिजन का हमने इक्वेशन डिराइव किया है, वैसे ही v1 और v2 का एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया है, सिर्फ यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन वो टर्म यहाँ पे आया है, राइट. सो दीज आर दी इक्वेशंस फॉर दी. अभी यहाँ पे वापस आप m1 को कॉमन निकाल सकते हैं, 1 प्लस ई भी लिख सकते हैं. यहाँ पे भी आप m2 को कॉमन निकाल सकते हैं, m2 को कॉमन निकाला तो 1 प्लस ई आ जाएगा, वो भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट. सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. तो वेरी सिंपल. सबसे पहले ये जो कंडीशन है ये अप्लाई करना है हर जगह पे, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो, इलास्टिक कोलिजन है, दिस टर्म इज कॉमन. द टोटल मोमेंटम इज कॉन्जर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, दिस मोमेंटम इज कॉन्जर्व्ड. तो ये स्टेप लिखना ही लिखना है. उसके बाद जो भी केसेस हो अप्लाई करना है, वेदर द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज मूविंग, किसका वेलोसिटी ज़्यादा है, कौन सा मास ज़्यादा है, वो बाद में लेने का, राइट. तो ये सब केसेस को अप्लाई करना है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शो दैट, वही इनइलास्टिक कोलिजन लेना है, इसमें काइनेटिक एनर्जी नॉट कॉन्जर्व दिखाना है, ओके. शो दैट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कॉन्जर्व्ड in one dimensional or head on collision, one dimensional perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision, or show that there is a loss in kinetic energy in a one dimensional perfectly inelastic collision. तो एज यूजुअल जो भी मासेस है m1 m2 लेना है, ओके. सो मासेस ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज आर
masses are m1 m2, initial velocities u1 bar and u2 bar before collision, right? उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मतलब यहाँ पे दोनों स्टिक होंगे कोलिजन के बाद एंड दे विल मूव द कॉमन वेलोसिटी. ओके, ड्यूरिंग दिस perfectly inelastic collision, okay, after collision both the particle or both the bodies stick together. ये सब लिखना है आपको जब भी आप डिराइव करोगे ना 4 या 5 मार्क के लिए, तो ये सब वर्ड में लिखना है. स्टिक टुगेदर and moving with a common velocity, moving with common velocities capital V, दोनों कॉमन वेलोसिटी में होंगे. ओके, लेकिन यहाँ पे जो इनिशियल हमारा जो फॉर्मूला है वो तो लिखना ही है, राइट? सो m1 u1 प्लस m2 u2 विच इज इक्वल टू, राइट? तो यहाँ पे कॉमन वेलोसिटी आएगी एडिशन ऑफ मास m1 प्लस m2. दोनों बॉडी स्टिक हो गए. जैसे एक छोटी कार है, बड़ी ट्रक है, तो क्या कर, ट्रक ने कार को डैश मार दिया, वो ट्रक क्या करेगा, वो कार को लेके जाएगा. मतलब यहाँ पे क्या होगा, बोथ द कोलाइडिंग व्हीकल विल मूव टुगेदर विद द कॉमन वेलोसिटी. वो उसको घसीट के लेके जाएगा कॉमन वेलोसिटी, तो ये v होगा. सो सिंपल. और यहाँ पे दोनों का मास ऐड होगा. फाइन. ओके, सो what we can write the formula v is equal to m1 u1 plus m2 u2 divided by sum of the masses m1 plus m2. Okay, now the change in kinetic energy, क्या फॉर्मूला है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमको पता है. ओके, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई, डेल्टा सिंबल हमेशा याद रखना. डेल्टा सिंबल जो होता है दैट इज यूज फॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अभी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? हाफ मास इनटू वेलोसिटी, राइट? लेकिन मास कॉमन रहेगा. ओके, मास विल बी डबल, वेलोसिटी कॉमन होगी 1/2 द मास ऑफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ both the colliding bodies, they stick together and moving with the common velocity. तो यहाँ पे क्या आएगा? m1 plus m2, दोनों का मास कंबाइन होगा, राइट? एंड बोथ द बॉडी, स्टिक बॉडी विल मूव द कॉमन वेलोसिटी v स्क्वायर. ओके, देन माइनस 1/2, यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? दिस कैन बी रिटन एज m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर. दिस इज द टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन. कोलिजन के पहले दोनों बॉडीज का काइनेटिक एनर्जी रहेगा, राइट? अभी यहाँ पे v का जो वैल्यू है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट? सो डेल्टा के ई इज इक्वल टू 1/2, इसको इक्वेशन 1 देता हूँ, इक्वेशन 2 देता हूँ. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन 2 वी कैन राइट m1 प्लस m2 इंटू ब्रैकेट, ये पूरा टर्म का स्क्वायर लेना पड़ेगा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. मैं क्या करूँगा, इसको स्क्वायर कर दूंगा और इसको भी ऊपर भी स्क्वायर कर देता हूँ इंडिविजुअली फॉर माई कन्वीनियंट. ओके, मेरा अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे दूंगा कॉमन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉमन स्क्वायर आई हैव गिवन द सेपरेट स्क्वायर फॉर डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर. ओके, माइनस 1/2, दिस कैन बी रिटन एज, अभी इसको सिंप्लीफाई करूँगा मैं, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर. Now चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई इज इक्वल टू, अभी देखो बच्चों यहाँ पे
यहाँ पे m1 प्लस m2, यहाँ पे भी m1 प्लस m2, एक कट हो जाएगा, 1 m1 प्लस m2 विल बी कट, तो एक ही बचेगा यहाँ पे, ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक बचेगा m1 प्लस m2, एक ही बचेगा, ओके, दैट वी विल राइट। सो क्या आएगा 1/2, अभी इसका स्क्वायर लेंगे, वी विल टेक द स्क्वायर ऑफ दिस, क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ दिस विल बी इंटू 1/m1 प्लस m2, कॉमन निकाला मैंने, m1 u1 स्क्वायर, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, क्या है प्लस 2 टाइम्स m1 m2 u1 u2, बराबर। 1/2 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे पूरा 1/2 मैंने कॉमन निकाला तो उधर नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस m1 u1 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर डिवाइड बाय, सॉरी ये ना ये इसको रहेगा सिर्फ, तो ये अलग रहेगा, दिस विल बी सेपरेट, ओके, इसको राउंड ब्रैकेट डाल देता हूँ, दिस विल बी द राउंड ब्रैकेट हियर, ओके फाइन। तो हाफ को मैंने कॉमन निकाला, अभी उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, आफ्टर दैट यू कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर, अभी यहाँ पे क्या कट होगा, कुछ कट होता है क्या, m1 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे, m1 m2 अगर कॉमन निकाला तो इफ यू टेक m1 u1 स्क्वायर टू m1 m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 u1 स्क्वायर, अभी ये जो है ये इधर आ जाएगा, ओके, एलसीएम विल बी m1 प्लस m2, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो डेल्टा के ई इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट, क्या आएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 u1 u2 माइनस दिस विल मल्टीप्लाई टू दी इस टर्म, तो ये जो m1 m2 है ये हर टर्म को मल्टीप्लाई करा, अभी पहले m1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा बच्चों, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m1 m2 u2 स्क्वायर, अभी m2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस आएगा माइनस आएगा, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस m2 इंटू दिस, सो m1 m2 स्क्वायर, m1 m2 u1 स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, देखते हैं अभी यहाँ पे कुछ कट हो रहा है क्या, लेट्स सी इफ एनीथिंग कैन बी कैंसल्ड आउट, यस, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर कट होगा, प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, समथिंग 2 टाइम्स आएगा क्या, सब्ट्रैक्ट होगा, इज माइनस, अच्छा भैया हमने अच्छा ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, निकल गया, ओके, सो यहाँ पे ये माइनस ही है तो ये भी माइनस आएगा, सो दिस m2 स्क्वायर विल गेट कैंसर, अभी क्या बचा है, अभी देखते हैं, बहुत कॉशियसली सॉल्व करना है, डेल्टा के ई इज इक्वल टू 1/2 कॉमन निकलेगा, इंटू ब्रैकेट क्या बचेगा यहाँ पे, ट्वाइस m1 m2 u1 u2 माइनस, अभी ये टर्म बचेगा, माइनस m1 m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 m2 u1 स्क्वायर, अभी यहाँ पे m1 m2 कॉमन निकालेंगे, राइट, तो 1/2 इंटू ब्रैकेट
और ये भी रहेगा, दिस विल ऑल्सो देयर कॉमन, इसका 1/m1 प्लस m2, यहाँ पे भी m1 प्लस m2। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2, क्या कॉमन निकालेंगे, माइनस m1 m2 को कॉमन निकालेंगे, सो माइनस m1 m2 कॉमन निकाला, बाहर आ जाएगा, इंटू ब्रैकेट यहाँ पे क्या आएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, u2 स्क्वायर ये प्लस होगा दोनों, माइनस 2, यहाँ पे 2 u1 u2 आएगा, 2 u1 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके, अभी यहाँ पे इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे डिनोमीटर पे, तो डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये माइनस इन बाहर आ जाएगा, -1/2 इंटू ब्रैकेट, ओके, इंटू ब्रैकेट क्या आएगा, इसको भी बाहर निकालता हूँ, ये भी कॉमन आ जाएगा, इंटू m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है, m1 इंटू m2, m1 प्लस m2 इंटू ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा u1 स्क्वायर प्लस u2, दिस कैन बी रिटर्न एज, दिस इज द एक्सपांशन ऑफ a प्लस a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग द अलजेब्रा आइडेंटिटी, बाय यूजिंग अलजेब्रा आइडेंटिटी u1 माइनस u2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। आ गया बच्चों? सो दिस इज द एक्सपांशन फॉर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में यहाँ पे वी गॉट द एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो ये क्या आएगा u1 माइनस u2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये यहाँ पे रिड्यूस मास आएगा, और ये जो नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, राइट। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखूंगा मैं, सो देयरफॉर आफ्टर दिस लॉस in kinetic energy is equal to the initial kinetic energy वो ज़्यादा रहेगी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी विद द पॉजिटिव साइन। अगर ये निगेटिव साइन को अगर पॉजिटिव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द प्रॉपर एक्सपांशन, फाइन। सो एंड this m1 upon m2 plus m1 into m2 upon m plus m2, this can be used as a reduced mass of a system, reduced mass of a system. So masses are always positive, u1 minus u2 square is also positive, okay. So hence there is always a loss in the kinetic energy, there is always loss in the kinetic energy. Now the next is final velocity and loss in kinetic energy in an elastic हेड ऑन कोलिजन, इन एन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। अगला एक्सपांशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो लास्ट में इसके बाद क्या लिखोगे वर्ड में, यहाँ पे थोड़ा लिख लो, मासेस आर ऑलवेज पॉजिटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी, मासेस आर ऑलवेज पॉजिटिव, एंड u1 माइनस u2 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव, ओके। सो हेंस देर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द परफेक्टली इनइलास्टिक origin, hence there is loss of or loss in kinetic energy, loss in kinetic energy in a perfectly inelastic region, in a perfectly inelastic collision। perfectly inelastic collision मतलब coefficient of restitution is 0, understand? ओके, अगला एक्सपांशन हमने लिया फाइनल वेलोसिटीज। गिव द नेक्स्ट टाइटल, नेक्स्ट रीडिंग दे दो, फाइनल वेलोसिटीज, दैट इज v1 एंड v2, फाइनल वेलोसिटीज
and loss in kinetic energy in an inelastic head on collision, मतलब वन डायमेंशन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन. अगला डेरिवेशन जो है दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2 एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो वही हमारा जो फॉर्मूला है स्टार्टिंग का, इज द कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन ऑफ. ओके, देन व्हाट इज द बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये जो रूल है, ये जो प्रॉपर्टी है हमेशा यूज करनी है बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिकॉज इट इज हेड ऑन कोलिजन, वन डायमेंशन मोशन, लीनियर मोमेंटम. तो वही फार्मूला हम वापस लिखेंगे. व्हाट वाज द फार्मूला वी रोट अर्लियर? दैट वाज द सम ऑफ द टोटल इनिशियल मोमेंटम, दैट इज m1 u1 plus m2 u2. This is the total initial momentum of the two bodies when they are moving in the same straight line, which is equal to the final momentum. Sum of the final momentum will be m1 v1, final momentum of the first body, to the final momentum of the second body, m2 v2. So the expression for final velocities, हमने previously जो expression derive किया है, see just recall that expression for initial velocity, recall that final expression for final velocity, right? तो v1 का और v2 का हमने फार्मूला बनाया था, जरा सा याद करो प्रीवियस इक्वेशन में से. सो वी हैव डिराइव्ड लाइक दिस, m1 e minus m2 डिवाइड बाय सम ऑफ द मासेस m1 plus m2, right, होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी, प्लस सेकेंड ब्रैकेट में हमने लिखा था the m2 into bracket 1 plus e divide by total mass m1 plus m2 ब्रैकेट कंप्लीट. अभी यहाँ पे u1 है ना, तो यहाँ पे u2 आएगा, देयर बी u2 एज यूजल. ओके, सो फ्रॉम दिस अभी हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो विल राइट एक्सप्रेशन फॉर v1, तो इसको कॉमनली लिखेंगे. सो v1 इज इक्वल टू, v1 कैसे लिख सकते हैं, ये u1 इसको मल्टीप्लाइड होगा m1 u1 माइनस e m2 u1 प्लस अभी इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो पूरा मल्टीप्लाई कर ले तो m2 u2, राइट, प्लस m2 टाइम्स e u2 डिवाइड बाय द टोटल मास m1 प्लस m2. So this is the equation for the final velocity v1. Okay, तो अभी ये जो v1 मिल गया. सिमिलरली वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर v2 का एक्सप्रेशन बनाएंगे हम. सिमिलरली वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर v2 इज इक्वल टू यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट इक्वेशन विल बी सेम, दैट इज m1 के जगह पे m2 डालना है. यहाँ पे m2 माइनस ई एम वन अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, यहाँ पे m2 है ना, तो यहाँ पे u2 आएगा, u2. ओके, फाइन. देन प्लस सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पे m2 है तो यहाँ पे m1 लेना है. सो m1 1 प्लस e डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2. ओके, तो यहाँ पे m1 है तो यहाँ पे u1 आएगा, u1. सो दिस इज व्हाट u1. तो अभी इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो v2 इज इक्वल टू, राइट, m2 u2 माइनस e m1 u2 प्लस m1 u1 प्लस m1 e u1 डिवाइड बाय द टोटल मास m1 प्लस m2. So these are the equations of final velocity v1 and v2. So we got the two equations. So from this we have to write the expression for kinetic energy, loss in kinetic energy. So loss in kinetic energy
loss in kinetic energy is given by so after putting this value delta ke is equal to 1/2, ये आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, ओके, m1 m2 डिवाइड बाय m1 plus m2, this bracket complete, okay, into here u1 minus u2 times 1 minus e square. यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ प्रिसिशन 1 माइनस ई स्क्वायर आएगा, ओके. सो हियर द कंडीशन इज लेस देन 1. अगर यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन के लिए कंडीशन क्या है? द फॉर इनइलास्टिक कोलिजन राइट, व्हाट इज द कंडीशन? 0 लेस देन ई लेस देन 1. अगर यहाँ पे ई का वैल्यू 1 से छोटा होगा, राइट, मान लो इफ इट इज लाइक दिस 0.5 लिया मैंने, ओके, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? इसका स्क्वायर विल बी 0.25. तो उसका स्क्वायर और भी छोटा हो रहा है, लेस देन 1, तो 1 माइनस ई, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी इफ यू आर टेकिंग द ई इज लेस देन 1. हाँ, अगर ई से बड़ा ले रहा है, ई ग्रेटर देन 1 ले रहा है, तो तब ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, दिस विल बी नेगेटिव. बट यहाँ पे लेस देन 1 है, इसलिए ये जो सब्ट्रैक्शन है, ये जो टर्म है, this term will always positive when we are taking e less than 1, okay. So for e less than 1, then this implies that 1 minus e square will be always less than always positive, will be positive. ये positive आएंगे, that is what we have to write, okay. So 1 minus e square is always positive, hence there is always in the loss of kinetic energy. मतलब यहाँ पे क्या होगा? हमेशा kinetic energy loss होगी, okay. So for elastic collision, for elastic E is equal to 1. तो 1 minus 1 0, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. So delta K will be 0. Okay, for elastic collision, delta Ke is equal to 0. There is no loss of kinetic energy for elastic collision. For elastic collision के लिए क्या? There is no change in kinetic energy, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म 0 हो रही, तो पूरा टर्म ये जो हो रहा है पूरा टर्म 0 हो जाएगा. सो नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. देन फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए क्या है कंडीशन? स्मॉल ई इज इक्वल टू 0. पुट वैल्यू ऑफ ई इक्वल टू 0 है, तो क्या आएगा बच्चों? ये पूरा ये इक्वेशन आएगा. सो देयर इज द मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके. सो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, राइट. फॉर ई इज इक्वल टू 0 देयर विल बी मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. सो जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस. अभी इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मोमेंटम, ओके, इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम. यहाँ पे आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये जो डेरिवेशन मैं लिख के दे रहा हूँ. सो यू हैव टू डू नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस. खुद लिखने का सॉल्व करो, क्या क्या स्टेप्स याद रखने, कैसे करना है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. 1-2 बार लिखने से काम नहीं चलेगा, ओके. यू हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस फॉर दिस, ओके. सो इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम, हमने प्रीवियस क्लास में इम्पल्स देखा था. इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम. आपको इम्पल्स याद है? इम्पल्स इज द लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर short interval of time, that is called as impulse, or this impulse is also equal to change in momentum. Okay, so that formula we know that. And symbol used for impulse is, क्या symbol use किया था हमने? Capital J. Okay, so the magnitude of the impulse
impulse on particle 2 by 1 ड्यूरिंग द कोलिजन जब होता है तो वहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लीकेबल होता है, राइट. एंड ड्यूरिंग द कोलिजन दे एक्सपीरियंस द force, okay, and they also change in momentum, right. So is given by, so how can we write that? 2 by 1 will be j is the impulse on particle 2. who is imparting, कौन impulse कर रहा है? 1, j to 1, which is equal to, okay. So this can be written as delta p2. There is a change in momentum in the particle 2, and for change in momentum in the particle 2 क्या होगा? Final momentum, that is m2 v2 minus initial momentum of particle 2, that will be m2 u2. Fine. So m2 v2 minus m2 u2. Substituting v2 from equation, जो पहले वाला हमारा इक्वेशन था उससे हम v2 जो डिराइव किया था v2 वाला, दिस वी विल सब्स्टिट्यूट हियर, ओके. ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो v2 का वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, समथिंग कॉमन वी कैन टेक 1 u1, ओके. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ substituting value of v2, okay, from, okay, जो इक्वेशन हो. सो j21 is equal to, so m2 इंटू ब्रैकेट v2 का वैल्यू डालना है, दैट इज em1 इंटू ब्रैकेट u1 माइनस u2 em1 u1 माइनस u2, ओके, प्लस m1 u1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2 u2, ओके. होल ब्रैकेट डिवाइड बाय m1 प्लस m2, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस m2 u2. तो ये इक्वेशन में जो चेंज इन मोमेंटम है v2 का वैल्यू, ये इक्वेशन से लेना है फ्रॉम दिस सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ओके. अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा इसको एलसीएम निकालना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा सिंप्लीफाई करेंगे. लेट अस सिंप्लीफाई दिस, थोड़ा सा लंबा है काफ़ी कैलकुलेशन. j21 इज इक्वल टू, नाउ अभी m2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे, em1 m2 इन द ब्रैकेट भी सॉल्व कर लेंगे. तो ब्रैकेट सॉल्व किया तो क्या आएगा, u1 माइनस em1 m2, इसे मल्टीप्लाई किया और अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे u2, फाइन, प्लस m2 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो m1 m2 u1 प्लस m2 स्क्वायर, ये m2 इसको मल्टीप्लाई होगा m2 स्क्वायर u2 माइनस, अभी ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा बच्चों, m1 m2 u2, ओके, प्लस लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, ओके, तो माइनस क्या आएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस m2 स्क्वायर u2, सो ब्रैकेट कंप्लीट. अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, डिवाइड बाय ये वाला टर्म, डिवाइड बाय होल ब्रैकेट डिवाइड बाय द टोटल मास m1 प्लस m2. यहाँ पे कट होगा, अभी देयर इज द कैंसिलेशन ऑफ क्या कैंसिल होगा, लेट अस सी सम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसिलेशन. m2 स्क्वायर u2 कट हो जाएगा, ओके. और क्या कट होगा, वही इतना ही कट होगा. देन इम्पल्स ऑन पार्टिकल 2 1 by 1 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे m1 m2 को कॉमन निकालेंगे, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या देखते हैं. m1 m2, यहाँ पे m1 m2 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे भी m1 m2 कॉमन निकलेगा, तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ m1 m2 डिवाइड बाय, ये भी कॉमन है वो नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ब्रैकेट. अभी देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, e बचेगा, तो यहाँ पे आएगा e टाइम्स u1 माइनस e टाइम्स u2, ओके,
माइनस u1 माइनस u2. ओके, ये प्लस आएगा, सॉरी दिस विल प्लस. अब यहाँ पे वापस e कॉमन निकलेगा, तो वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस. So impulse on J21 is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2, okay, into bracket e को कॉमन निकालेंगे, e टाइम्स u1 माइनस u2 प्लस u1 माइनस u2. दोनों में वापस u1 माइनस u2 कॉमन निकलेगा, तो J21 इज इक्वल टू इम्पल्स ऑन बॉडी 2 बाई 1 विल बी m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. यहाँ पे u1 माइनस u2 को कॉमन निकलेगा, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, ये 1 आएगा, 1 प्लस ई, 1 प्लस ई. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इम्पल्स ऑन पार्टिकल 2 बाई 1 ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन. तो यही सेम यहाँ पे अप्रोच करना है. सो व्हाट इज u1 माइनस u2? u1 माइनस u2 इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. व्हाट इज दिस टर्म m1 m2 अपन m प्लस m2? दिस इज द रिड्यूस मास. ये क्या आएगा, रिड्यूस मास, और ये रिलेटिव वेलोसिटी, और दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ओके, सो लेट्स राइट म्यू इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइड बाय, सॉरी मल्टीप्लिकेशन आएगा, अपॉन m1 प्लस m2. This is reduced mass of system, reduced mass of a system. And what is u1 minus u2 बच्चों? u1 minus u2 will be relative velocity of approach, relative velocity of approach, right? And what is e? E is the coefficient of restitution, coefficient of restitution. So ये हुआ J21. Similarly you can find J12 by taking, यहाँ पे हमने क्या लिया, V2 का वैल्यू लिया, यहाँ पे वी हैव सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ V2. अभी नेक्स्ट एक्सपेंशन का J12 विल बी डेल्टा P1 इज इक्वल टू M1 V1 माइनस M1 U1. तो यहाँ पे जो V1 आएगा वो V1 का वैल्यू वही एक्सप्रेशन से लेना है, ये वाला, इसके पहले वाला जो था वो V1 का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, राइट. तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको. सो यू कैन फाइंड दी इम्पल्स ऑन पार्टिकल 1/2. अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो. So similarly the magnitude of impulse on particle 1/2 can be written as, okay. तो यहाँ पे J12 का impulse on 1/2, okay, impulse on 1/2 can be written as delta P1. उधर डेल्टा P2 लिया था, यहाँ पे डेल्टा P1 लेंगे, which can be written as change momentum, final momentum m1 v1 माइनस m1 u1. ओके, तो ये अभी ये जो इक्वेशन इसमें v1 जो हमने डिराइव किया था अर्लियर इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, वो v1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, राइट. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v1, substituting value of v1, okay, in above equation, राइट. मैं यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, जो भी बाकी का जो कैलकुलेशन है वो आपको करना है एज अ होमवर्क पार्ट. जस्ट सिमिलर है, जस्ट ट्राई यूर सेल्फ. अगर कुछ डाउट है तो आई विल गिव आफ्टरवर्ड्स द रनिंग जो भी है व्हाट्सएप पे मैं बता दूंगा आपको. सो J12 इज इक्वल टू M1 इंटू ब्रैकेट सबसे वैल्यू ऑफ V1 ईयर. तो V1 का वैल्यू क्या है, M1 EM2 इंटू U2 माइनस U1 प्लस
m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होल ब्रैकेट माइनस m1 u1। इसको पूरा सिंप्लीफाई करने का, जैसे हमने पहले वाला सिंप्लीफाई किया था वैसे ही सिंप्लीफाई करना है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। और लास्ट में हमको मिलेगा यहाँ पे सॉल्व करके J12 इज इक्वल टू m1 m2। ओके, मैं ज़रा नीचे लिखता हूँ तो आपको कन्फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ J12, यहाँ पे बीच में स्टेप्स है। ओके, टू बी सॉल्व सिंप्लीफाई आफ्टर सॉल्विंग above we get J12 is equal to m1 m2 divide by m1 plus m2, okay, into bracket u2 minus u1 into e plus 1। यहाँ पे देखो J21 में क्या आया था, u1 माइनस u2। ओके, यहाँ पे क्या आएगा u2 माइनस u1, उल्टा करना है, यहाँ पे इसको उल्टा करना है, राइट। 1 प्लस ई, यहाँ पे भी 1 प्लस ई आएगा, दैट विल बी कॉमन। Then J12 is equal to mu times u2 minus u1 into 1 plus e. So this is the expression for the momentum, right? This is the change in momentum into coefficient of precipitation. Okay. So u2 minus u1 क्या है, velocity of approach into 1 plus e. So इससे हम क्या लिख सकते हैं, at the last from this J21 is equal to minus J12 लिख सकते हैं from this equation, right? So बस आज इतना ही। Next time we will have the 2-dimension collision in 2 dimension. So far we have discussed about the collision in 1 dimension, head-on collision देखा। अभी लास्ट टॉपिक जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द कोलिजन इन 2 डायमेंशन, तब उसका हमको फाइंड करना है। ओके, अलग अलग जो मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सब हम डिराइव करेंगे। ओके, चलो बच्चों आज इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इसका, जो भी न्यूमेरिक डेरिवेशन है थोड़ा सा 1-2 बार देख के सॉल्व करो, बाद में आपको अपने आप ये आ जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू।